Hello students, very good morning to all of you. Hope all of you are doing very well. My dear students, I am Dr. Arvind Raj Ojha from Stream India Education, Mumbai, back again for your educational services. My dear students, there are a number of students, they are repeating or they are freshers for coming academic session in 2023 for NEET examination. Yes, आप हर साल का इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे लगातार रिपीट करते आ रहे हैं, नीट को लगातार रिपीट कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, और तब तक रिपीट करते हैं जब तक उन्हें एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिल पाते। वहीं दूसरी ओर आप देखें तो नंबर ऑफ fresher students are added every year. Every year, lakhs of fresher, new batch of students all over India, it is added. So, coming to preparation for NEET 2023 batch, what kind of strategy you should opt while preparing NEET examination? What kind of protocol you must follow while doing your NEET study, and what must be your planning from this academic session? Most of the time, multiple number of children, either they have joined number of institutions, coaching institutions, private tuitions, or many number of students, they are doing self-study also. Now let us see in brief, हम थोड़ा भी देखते हैं कि नीट की इंपॉर्टेंस क्या है। जी हाँ, रिमेंबर नीट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज नोन एज एनटीए। जी हाँ, एनटीए एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जिसकी जवाबदारी है नीट एग्जाम्स को स्मूथली एफिशिएंटली कंडक्ट करवाना। आप देखें कोरोना के पहले अगर आप पाते हैं कि जो नीट की एग्जाम्स है जनरली ये मंथ ऑफ मई में 5 से लेके 8 मई या 12 मई के बीच हो जाती है, और जून 6 से लेके 12 के मई तक रिजल्ट आ जाते थे। बट नाउ ड्यू टू कोविड टाइम सिनेरियो हैज गॉट चेंज। सो एडली स्पीकिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी February फॉर्म फिलिंग स्टार्ट्स। दे गिव एम्पल टाइम फॉर करेक्शन विंडो, you can pay the fee, you can do correction, and finally form is submitted. Then exam will be conducted in the month of May. Prior to that you will get admit card or hall ticket and so on. Now coming to the point, last year there were total 18,72,000 students who registered for NEET, but officially we found that only 16,50,000 appeared for NEET examination, and out of which 9,82,000 students got qualified. So last year, it means academic session 2022, the cutoff criteria was 117 for open category, and for others SC, ST, OBC, NT, physically handicapped, other quota, it was just 93 marks. So remember, whenever you are doing study, in that case, not only your scorecard, but the children, the student who score more marks than you, they decide your all India ranking. And remember, NEET is only the examination which decides eligibility for top aims. There are 20 aims. Then BHU, AMU, DU, FMC Pune, ESIC Hospital at Faridabad. Beside this, Zipmer. So all top class institutions, whether it is central government, medical institutions, or state government, or private, or deemed, or semi-government, NEET is only the criteria to get admission for MBBS, BDS. Beside this, for CCIM courses like BAMS, BHMS, BUMS, BSMS,
and in Maharashtra like state where NEET appearance is mandatory for physiotherapy. Now here the concern is what? There are only 92,000 seats currently as per today's record for MBBS in India. In that 2,039 Zipmer seats are not included. Besides this, we have 27,350 seats for BDS and 52,380 seats for BAMS, and rest courses seats vary from 20 to 35,000 all over India basis. Now the concern is what? What should be your marks for NEET? जब भी आप नीट की पढ़ाई करेंगे तो हमेशा टारगेट हायर लेवल पर रखिए। जी हाँ, अगर 720 मार्क्स का हमारा नीट है तो आप कोशिश कीजिए कि 720 में से एटलीस्ट आप टारगेट रखें 600 एंड अबव का, तब जाकर कहीं आप 300 या उसके आसपास सोच सकते हैं। रिमेंबर, कीप हायर थिंकिंग, execute your plan and attempt accordingly, because what will happen if you keep smaller aims कि मैं इतने ही मार्क्स ले लूँगा, मैं इतने ही मार्क्स ले लूँगा, तो उसमें हमारे काम बिगड़ सकते हैं। आप समझने की कोशिश करें, ऑलवेज कीप हायर एम्स। यस, 720 मार्क्स का नीट है तो हमें करना चाहिए एटलीस्ट 600 650 टारगेट, दैट इज लोअर साइड, एंड अपर साइड यू मस्ट कीप टारगेट 720 out of 720 only, then only you become successful. And let me tell you, if you score 500 and above, then there are bright chances to get semi-government seat. And but if you score 590 or 595 and above, then there are bright chances to get government seat. And no doubt for AIMS, for BHU, for Zipmer, for top leading institutions in India like DU and all, you must score 630 and above. Yes, 630 and above, because it is not only your scorecard, but children who scored more marks than you, they decide your percentile, they decide your ranking. Now coming to strategy, planning, हमें कौन सी प्लानिंग करनी होगी, हमें क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी होगी, सो वी कैन स्कोर बेटर मार्क्स। यस स्टूडेंट्स, जब हम स्टडी स्ट्रेटजी प्लानिंग की बात करते हैं तो ये प्लानिंग हम सभी को करना चाहिए। रिमेंबर, इस प्लानिंग में स्टूडेंट की प्लानिंग के अलावा पेरेंट्स की प्लानिंग का ही उतना ही योगदान होता है। रिमेंबर, किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस में उसके माता पिता और फिर गुरुजनों का उतना ही योगदान होता है जितना बच्चे का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो तो माय डियर पेरेंट्स, पहली प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि घर में शांति का माहौल रहे। जी हाँ, आप अपने बच्चे को एनकरेज कीजिए कि यस यू डू बेस्ट, but don't tell him, beta you score out of 720 only. Remember, no child want to score less marks, but please don't compile child you score 720 out of 720 only. Just tell, let the child do best. If you say best, child is aware, student is aware what to be done. Parents are spending a lot of money in coaching classes, in lakhs of rupees. They join crash course, they join private tutors. So no doubt it is responsibility of parents. So let the student also perform best from their side, but don't give any specific target. Just one word keep in mind, let the child do his or her level best. If child or student who is doing level best, you are satisfied. Now coming to the पॉइंट हियर, आप कौन कौन से टेक्निक ऑप्ट करेंगे, कौन कौन से तरीके अपनाएंगे अच्छे स्कोर लाने के लिए। नाउ यू आर ऑल आर अवेयर 720 मार्क्स की नीट एग्जाम होती है, इसमें आप 180 इंटू 4 करें 720 आ जाता है। 360 मार्क्स बायो, 180 मार्क्स फिजिक्स,
एंड 180 मार्क्स केमिस्ट्री। अगर आप बायो के 360 मार्क्स मीन्स बॉटनी और जूओ सेक्शन में पूरा ध्यान देते हैं तो 360 में से 330 स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाता है। जी हाँ, आउट ऑफ 360 यू कैन इजीली स्कोर 330 मार्क्स। नाउ एज आई सेड, फर्स्ट स्ट्रेटजी, घर में पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को अपने डेली रूटीन का एक टाइम टेबल बनाकर उसे एग्जीक्यूट करना ही होगा। जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तब आप डिसाइड कीजिए कि आपका बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी क्या है। जी हाँ, देयर आर टू काइंड ऑफ रीडर, वन इज डे रीडर, अदर वन इज नाइट रीडर। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कुछ स्टूडेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन डे टाइम में ज़्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन। जो बच्चे सवेरे 8 बजे से लेके दोपहर 3 या 4 बजे तक पढ़ते हैं, उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन पीक पर होता है और अच्छी पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे रात को 11 बजे के बाद बुक लेके बैठ जाते हैं, रात को 11 से लेके सवेरे 4 तक या 5 तक पढ़ते हैं। सो दैट टाइम देयर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। सो डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी वेदर यू आर बेस्ट डे रीडर और नाइट रीडर, या आप शाम को पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। कुछ बच्चे शाम को 5 से लेके 9 के बीच काफ़ी अच्छा पढ़ लेते हैं। सो डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, यू मेक योर टाइम टेबल, and honestly speaking it requires 4 fundamental principles. First is punctuality, second is consistency, third is follow timetable, and no doubt in सब के अलावा you require smart study. Yes, if you do smart study then the chances of getting qualified becomes more. There are children who study 18 hours but they are able to score just 330 or 200 marks. But there are students who study only 8 hours tactfully, smartly, and they are able to score 600 and above or 550 and above. So it will be depending on person to person. Now अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से माहौल होना चाहिए। सबसे पहले एक स्टडी रूम का होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, जब भी आप नेशनल लेवल या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो यू शुड हैव वन सेपरेट स्टडी रूम। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए अलग से कमरा होना चाहिए। अगर आपका कमरा छोटा है तो भी एक 3x4 के एरिया में आपका एक छोटा सा स्थान होना चाहिए जहां पर आप पढ़ाई पे ध्यान दे सकें। सेकंड पॉइंट, एकेडमिक में जैसे टोटल 97 चैप्टर्स हैं तो आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करेंगे। यू टू फॉलो एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड स्टेट पैटर्न। जस्ट रिमेंबर ऑल द नेम ऑफ 97 चैप्टर्स। जी हाँ, 97 चैप्टर्स के पूरे नाम बाय हार्ट कर लीजिए, उन्हें मकअप कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए दिमाग में। और एक आपके स्टडी टेबल के सामने एक सॉफ्ट बोर्ड होना चाहिए, उस बोर्ड पर सभी 97 चैप्टर्स के नाम होने चाहिए। तो जब भी आप आते जाते, एनी टाइम, नाश्ता करते समय, चाय पीते समय, सो के उठते हैं, तब पहला ध्यान आपको उस बोर्ड पर होना चाहिए कि कौन कौन से 97 चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आप के लिए जो भी टॉपिक हार्ड हो, जो भी वर्ड्स हार्ड हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बायो की बात करता हूं। अगर मैं बायो की बात करूं, द नेम इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स अ बिग नेम, ओके, which is associated with ribosomes in topic called protein synthesis or amino acid synthesis. So these are the difficult terms. हो सकता है कि एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट वर्ड या डिफिकल्ट टर्म कुछ और हो और दूसरे के लिए अलग हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि दो बच्चों के लिए डिफिकल्ट वर्ड सेम होगा। हर बच्चे का अपना मेथड होता है, अपना तरीका होता है। सो व्हाट यू डू ऑन योर सॉफ्ट बोर्ड, just pin the piece of paper with all the difficult word written over there. Yes, और वो difficult word किस टॉपिक से था, किस चैप्टर से था, उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए।
That is the first point, remembering the name of all 97 chapters and then remembering all the difficult words. अगर कोई difficult words आता है तो आप क्या करें? दूसरा मेथड, उससे 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार लिखते जाइए कंटिन्यू. Writing is the best part. Some children by writing they are able to install in their mind. Some children by saying. आप बार बार उच्चारण कीजिए शब्दों का तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. अदरवाइज यू कैन डू ऑडियो विजुअल मेथड. म्यूजिक लगाकर सुनिए, पढ़िए. कुछ बच्चे, यस यकीन मानिए, कुछ बच्चे फिल्मी म्यूजिक लगाकर भी पढ़ाई करते हैं. एंड इफ यू फाइंड कंफर्टेबल, फाइन, नो प्रॉब्लम. अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन किसी म्यूजिक को लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं ऑनेस्टली, देन डू इट, नो प्रॉब्लम. सो दे आर द डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड विच यू फॉलो. बिसाइड दिस, आपके टाइम टेबल फ्रेम में दोस्तों से मिलने के लिए आधे घंटे का समय जरूर दें. जी हाँ, हाफ एन आवर, 1 आवर टाइम टेबल में रखें. और आपके अगर पीयर ग्रुप है जो कि सेम प्रिपरेशन कर रहा है सेम एग्जाम के लिए, तो उनके साथ उस टॉपिक पर डिस्कस करें. याद रखिए, ग्रुप डिस्कशन में या दो बच्चों के आपस के डिस्कशंस में बहुत सारे टॉपिक्स सॉल्व हो जाते हैं. और कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 10 से 12 घंटे का समय दें पढ़ाई के लिए, ये शुरुआती फेज में. और जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप आवर्स को बढ़ा दीजिए. बिफोर एग्जाम इट शुड बी 12, 13, 14 आवर्स. हाउ टू रिमेंबर. जैसे मान लीजिए मैं टॉपिक की बात करता हूं कि जीन्स. व्हाट आर जीन्स? So genes are ultra microscopic particles found on DNA in a chromosome in the nucleus of a cell. तो ये जो DNA है कहाँ प्रेजेंट थे? सेल के अंदर थे. अंदर गए तो क्या आया? साइटोप्लाज्म आया. उसके अंदर गए तो क्या आया? न्यूक्लियस आया. न्यूक्लियस पोर थे, न्यूक्लियस वॉल था. उसके सेंटर में गए तो क्रोमोसोम था. क्रोमोसोम के अंदर डीएनए था. डीएनए के अंदर कोडॉन्स थे. सो अगर आप बाहर से अंदर आए तो सेल वॉल से चले गए कोडॉन जीन्स के अंदर. वही अंदर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा? ठीक उसी तरह जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो आपके गांव का नाम, आप किस तहसील में रहते हैं, किस जिले में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, और फिर किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, और फिर किस प्लेनेट में रहते हैं. तो उसी तरह किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ते हैं तो एकदम डीप में जाइए, गहराई में जाइए, पूरा उसका डिटेल निकाल लीजिए. और जब आपको लगा ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, उसे तुरंत लिख लीजिए, तो उससे चीजें आसान हो जाएंगी. और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो जैसे कि आई हैव माय ओन चैनल डू यू नो सीरीज वेयर आई पुट 10 play videos or under MCQs, like what is serotonin. So all the questions are solved in systematic series. You can subscribe my channel and find out number of useful videos which will be helpful for you in NEET preparation. As I provide counseling and coaching since last 22 years. Yes. Now coming to the next point, diagram based study. Sometimes you understand the concept better in diagram. डायग्राम बनाइए, उस पर जॉटिंग बनाइए, कलरफुल डायग्राम बनाइए, अलग अलग कलर में, याद रखने में आसानी होगी. अब क्या करें? सिंगल वर्ड आंसर पे बहुत ध्यान दें. सिंगल वर्ड, एक क्वेश्चन आ गया सिंगल वर्ड. ओके, लाइक इफ आई आस्क व्हिच इज द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ बॉडी, सो नो डाउट अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ लाइफ. So simply amino acid will be the answer. So single word answer से बहुत ध्यान दें आप लोग. और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन. चीज़ों को रिवाइज कीजिए. विदाउट रिवीजन, क्योंकि इवन ह्यूमन ब्रेन कैन कंज्यूम ओनली 20% वट एवर यू. हम सिर्फ 20% तक याद रख सकते हैं, बाकी 24 घंटे में हम धीरे धीरे भूल जाते हैं. तो उन चीज़ों को आप आसानी से ले जाइए. एक रिवाइज करने के लिए रोज के 2-3 घंटे दीजिए, चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगी. और इन केस ऑफ एनी फर्दर गाइडलाइंस, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स,
सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।